अभी So guys, welcome. This is Sunday. थोड़ा सा feeling a little lazy, but it is what it is. इडली हमने ऑर्डर करी है. Let me show you people. Idli and vada, 8 idlis and like 4 vadas. Heavy meal with 2 scoops of whey protein and 1 avocado. This is going to be our breakfast, and then we're going to, actually I'm not sure this is going to be my breakfast. Should I be going to the gym or should I be rather having my meal? Because gym आज सिर्फ 2 बजे तक ही चलता है, 10 to 2. That's the only timing I have, and like I can literally see my gym from here. Like, look at this. You see that thing board जो लगा हुआ है, that is my gym. So the gym is pretty much like I just cross the road and I go to the gym. So that's the gym. But anyways, what we are thinking right now is that should I be having the meal, because then I'm gonna sleep, क्योंकि बहुत बड़ा meal है. मन तो कर रहा है खाने का, but फिर वही है कि मेरे को 12 से पहले जिम भी पहुंचना है. So preferably I'll have it post workout or pre workout. But yeah, that's meal number 1, which is 4 idlis, 4 vadas, 1 avocado and 2 scoops of whey protein. That is gonna be meal number 1. Big heavy meal. I want to bulk, guys. I mean, I'll be really honest with you. I am seeing कि जैसे ईशान ठाकुर का एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ आजकल, तो if he's natural, I don't know, I mean, like nobody knows he's natty or not or whatever. lot of controversies are going on, but if he's natural, then what he says he did is he bulked till 85 kgs and उसके बाद फिर he cut down. So I guess maybe I should follow the same path, that I should be bulking till 85 kgs. 85 किलो तक मेरे को बल्क करना चाहिए और फिर उसके बाद मेरे को कट करना चाहिए. तो 81 80 पे even I'll look good, but then that's the hard part. Bulking till 85 is like gaining 4 kg of more muscle mass. Considering my years of training being like 8 years, gaining 4 kg of muscle mass, I don't know. I mean, why I feel confident maybe I can do it is because I never counted calories आज तक मेरे journey में. So maybe I'll start doing that now. Maybe I'll start counting calories. I'll start pushing my body a little more and I'll start pushing food a little more inside me. I've never done that. तो मैंने ये चीज़ें कभी की नहीं है. ट्रेन हार्ड किया है, बट फूड इतना पुश किया नहीं. तो अगर मैं फूड पुश कर पाऊँ और कैलोरीज का लमसम एक आइडिया लगा पाऊँ, काउंट तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा. आई एम टू लेजी फॉर दैट. बट इफ आई डू दिस 2 things, maybe I can get to like 85 kg with like 12-13% body mass, and then उसके बाद जब मैं कट करूँगा तो I can be like 80-81 lean and I'll look good. So that's the plan as of now. That's the mindset that we are having. तो लगता है कि इडली यार सूखे खा लेते हैं भाई चटनी उटनी के लिए. I'm too lazy for that. जस्ट इडली खाएंगे तो 4-5 इडली, 2 scoops of whey, 1 avocado. That is going to be the breakfast. But what I wanted to show is I wanted to show you people this. That song, baby. कितना एस्थेटिक लग रहा है भाई, कितना एस्थेटिक लग रहा है ये बंदा यार. मतलब हम जिम रैट्स का ना यही सीन है, सच बता रहा हूँ. बिकॉज हम लोगों के लिए इंस्टाग्राम इज नॉट लाइक हाउ इट इज़ फॉर अदर पीपल. लाइक वेस्ट द टाइम, जिनको लगता है कि हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. जिम रैट्स इट्स डिफरेंट फॉर अस. RFYP जो हमारा जो रील्स का सेक्शन है इज फिल्ड विद गाइज जिनका ना जो शर्टलेस होते हैं, देर ऑलवेज फ्लेक्सिंग, एंड it gives a different kind of dopamine rush to us. It motivates us in a way where we want to go to the gym and like push our body to the extreme. So ये बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है. मतलब बाकी लोगों का कैसे होता है, रील्स देख ली, लड़कियाँ देख ली, वो देख ली, लाइक कर दिया है ना, थोड़ा सा हॉर्नी फील करने लग गया. बट लाइक नॉट इन आवर केस. वी फील horny, you could say, or we feel that dopamine rush when we see guys who are like big, muscular, who are flexing, young, aesthetic. So it's different for us guys. मतलब सच बता रहा हूँ, मेरी रील सेक्शन में कभी भी ऐसे मतलब कोई रील ऐसे आ जाती है ना, अचानक स्क्रॉल करते करते भाई साहब ऐसे मन करता है यार रात पुश कर. जब मैं जिम जाने वाला हूँ तो फिर अब मैंने वो पहली रील देख ली, बंदा एकदम तगड़ा फ्लेक्स कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिम जाऊँ तो मैं भी अपना 110% एफर्ट्स दूँ. बिकॉज आई वांट टू लुक बिग. हु डज नॉट वांट टू लुक बिग, स्पेशली एज जिम रैट्स. हु डज नॉट. आप किसी से ऐसे
कभी मिलोगे नहीं किसी जिम वाले बंदे से उसको बोलोगे कि भाई अगर 2 किलो मसल मास कम करो होगा तो तेरे को चलेगा क्या, किसी को नहीं चलेगा भाई. एवरीबडी वांट्स टू पुश टू द एक्सट्रीम एंड हैव द मैक्सिमम मसल मास ऑन द फ्रेम एज पॉसिबल. दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस, दिस मेक्स अस हु वी आर. तो भाई एक चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये तो मेरा वे प्रोटीन है, बट मैं बेसिकली वे प्रोटीन लेता कैसे हूँ. अभी मैं 2 स्कूप्स वे प्रोटीन लूँगा. दिस इज द वे प्रोटीन राइट विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. आपने देखा भी होगा इंस्टा पे भी. तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, दिस इज माई रिप्ड अप. तो इसको यूज़ कैसे करूँगा, बेसिकली उसके साथ मैंने नई चीज़ जो करी है ना कि कोकोआ पाउडर ऐड कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा. इसमें है ऑलरेडी कोकोआ पाउडर और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ क्योंकि कोकोआ पाउडर ना भाई इज एंटीऑक्सीडेंट्स राइट. there's lot of antioxidants. तो बेसिकली एक स्टडी थी, साइंस की एक स्टडी हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि पीपल हु यूज्ड कोकोआ पाउडर इन हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स 2 टाइम्स है ना, उनको स्टेम सेल ग्रोथ जो भी वीक हिस्सा आपकी बॉडी में होता है ना वहाँ पे स्टेम सेल्स बनने लगे थे. मतलब ओनली 1 स्कूप 1.5 स्कूप, ज़्यादा नहीं. ये वर्कआउट भी करना है. 4 इडली खा ली मैंने और हाला 1.5 स्कूप. तो उनका जो था ना स्टेम सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई. मतलब इसके बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स है और उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स जो यूज़ होता है हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स के अंदर वो कोकोआ पाउडर ही होता है जो कोकोआ बीन्स से जो एक्सट्रैक्ट होता है. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. मैं भी वही करता हूँ. आई हैव कोकोआ विद द वे प्रोटीन शेक और फिर उसके बाद मैं ड्रिंक करके पी जाता हूँ. साथ के साथ ही शेकर को धो देता हूँ भाई क्योंकि ना आपने वो रील्स तो देखी होंगी जहाँ पे पुराना शेकर जो है बंदा यूज बहुत दिनों बाद बंद शेकर ओपन करता है और स्मेल से ही बेहोश हो जाता है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जैसे शेकर यूज कर रहे हो उसको तुरंत धो के रख दो. हेल्प मी अ लॉट. डन विद द वर्कआउट. तो ऑनेस्टली हैमस्ट्रिंग्स करके मज़ा आ गया. हैमस्ट्रिंग के मैंने 3 वेरिएशंस मारे. सीटेड हैमस्ट्रिंग, कर्ल्स
एंड देन लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और तीसरा स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जो डंबल्स लेके करते हैं ना थोड़ा सा बेंड होके। तो मज़ा आ गया। एक वेरिएशन जो मेरे को करना है ना लेग्स में, जो मुझे पता है कि बहुत फ़ायदा करेगा, गॉबलेट स्क्वाट्स। टी बार जो बार लेते हैं ना, मैं टी बार के लिए जो रॉड कोने में लगाते हैं, उसको लेके 3-4 प्लेट लोड करके मेरे को गॉबलेट स्क्वाट्स मारना है, ताकि जो पोर्शन दिखाई देता है ना फ्रंट लैट्स फ्रंट में क्वाड्स का, वो पोर्शन ग्रो करे। तो अभी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेग सेशन विद दैट, अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स का वर्कआउट सेशन था। मैं लास्ट में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जिम के लाइट्स वगैरह बंद हो गए थे, बट यू आर स्टिल ग्राइंडिंग एंड आई नो लॉट ऑफ यू पीपल डू द सेम। सो cheers to you. बाय फ्रॉम द जिम। देखो ये ऐसे बोरिया बिस्तर लेके जाता हूँ मैं, और ऐसे ऑफिस भी ऐसे ही जाता हूँ भाई। How many people do you know that actually go to the gym taking एक ट्रैकिंग बैग, इसकी 60 लीटर शायद कैपेसिटी है, और फिर ये कैमरा बैग अलग से। दिस इज लाइफ गाइस, बट मैंने गोना डू व्हाट मैंने गोना डू। करना पड़ता है भाई, क्या करें, क्योंकि ना इसमें मेरा बहुत सारा जिम का सामान है। कपड़े भी जो होते हैं वो मेरे मैं बैग में ही रखता हूँ, बेल्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें। किसी दिन ये वीडियो बनाऊंगा मैं कि यू नो थिंग्स दैट आर इनसाइड माय जिम बैग। We'll do an unboxing video someday. So this episode of Demon Slayer got me really emotional. You should definitely watch this. I don't know which episode is this. Episode number 19. You should watch it, guys. It's I literally like cried. It's a very good episode, guys. You rarely get to watch episodes like this. A very strong bond between a sister and a brother. You never see anything like this. Fuck, मैं सैम सुलग की वीडियो देख रहा था भाई, वो बोल रहा था कि every episode of Demon Slayer is like it is very interesting, but shit, I didn't know it is just good. Demon Slayer ये anime है. Sam Sulek was saying the same thing कि every episode like he feels different something, but I never knew it was so good. It was so good, guys. Shit, watch this. ये season 1 ही है, episode number 18. Demon Slayer Kimetsu no Yalba, ये इसका नाम है. Shit, I literally like I was crying like something bad happened, but it was very emotional. Especially this episode, मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ है। ये episode 18वां या 19वां, Demon Slayer Kimetsu to Yalba. Guys, watch this. मेरे को क्या लगता है भाई कि ना, अगर हमारी पहली रिलेशनशिप काम करी होती ना, मतलब जो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप होती है, अगर इट वुड हैव वर्कड देन लाइफ वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। मतलब जो चीज़ें अभी हैं, आप जैसे अभी हो अब वैसे बिल्कुल नहीं होते अगर आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप वुड हैव वर्कड। इट्स ओनली ड्यू टू दैट फर्स्ट रिलेशनशिप नॉट वर्किंग आउट, इट चेंजेस यू अ लॉट, लाइक व्हाट यू आर राइट नाउ। समवेयर the root is in the first relationship not working out, and I'm strictly talking about relationships or love and attachment, bonds, all these issues. It's all due to that first relationship that did not work out. क्या होता है पता है, रिलेशनशिप्स में मैंने मोस्टली ये देखा हुआ है ना कि दिस अदर पर्सन, ही और शी कोई भी हो सकता है, वो अगर उनको नहीं रहना ना आपके साथ
तो वो जानबूझ के आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसा गुस्सा दिलाते हैं आपको कि ना आपको गुस्सा आए और आप उस गुस्से में कुछ एक गलत शब्द का उपयोग कर लो या कुछ गलत कर दो, है ना। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर वो आपको बोलेंगे, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, देखो इस चक्कर में मुझे आपसे साथ नहीं रहना था और ये इश्यूज़ था, इसीलिए यू आर द बैड पर्सन हियर, व्हेन इन फैक्ट यू वर द वन हु इन्वेस्टेड टाइम, जिसने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, जिसने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी, एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ व्हाट यू गेट टू हियर कि ना द ब्लेम्स कि you were the villain here, you were the wrong person here. So it happens to the best of us, it happens to most of us. It is what it is life. But मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों की पहली रिलेशनशिप वर्क करती है ना, तो लाइफ में काफ़ी पीस होता है। एंड इमेजिन लाइक यू आप जैसे स्कूल में थे और आपकी बंदी थी या है ना जो भी रिलेशनशिप में थे, और इट वुड हैव वर्क, यू पीपल गॉट मैरिड, ठीक है झगड़े होते हैं आपस में, बट हाउ सॉर्टेड वुड इट बी, बिकॉज जो भी कन्फ्रंटेशन होगा, जो भी झगड़ा होगा या प्यार होगा, दैट इज बिटवीन दिस पर्सन, you know it, the other person knows it, so how sorted it is, how peaceful it is. But apart from that, let's say you broke up, स्कूल रिलेशनशिप स्कूल में खत्म हो गई, कॉलेज वाली रिलेशनशिप कॉलेज में खत्म हो गई, फिर ऑफिस वाली रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, आई डोंट नो मैन, एवरी लाइक relationship that did not work out leaves a scar, a little scar on the heart. You accept it or not, I know you want to be cool, you don't accept it, you're like, it's okay, you know what, I'll give my 100% this time. No bro, there's no 100%. It was 100% back जब वो स्कूल वाला प्यार था, जब वो वाला रिलेशनशिप था, उसके बाद it's 90%, उसके बाद it's 80%, 3-4 बात के बाद तो it hardly even 34-40%, like people don't even are not the same anymore. It's true. So it is what it is, you move on. That's just life. मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी पहली रिलेशनशिप जो होती है ना, अगर आपका स्कूल में नहीं होता अच्छी बात है, कॉलेज में अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, तो ऐसा कोई देखो यार जिसके साथ आप ना मतलब टिक सकते हो आगे यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग, यू इन्वेस्ट टाइम एंड इट्स वर्थ इट, rather than being here and there doesn't really make sense. मैं एक बंदी को जानता था जो कॉलेज में थी एंड शी वाज इन रिलेशनशिप विद दिस गाय एंड एवरी गाय इन द कॉलेज वाज लाइक कि ना यार, वो मुझे खुद ही बता रही थी कि यार तुम लोगों का तो सॉर्टेड है, तुम लोगों की तो शादी हो जाएगी, ये वो, और ऐसे ही रहते थे पति पत्नी की तरह जैसे होता है, मतलब बॉन्ड उनका उतना स्ट्रॉन्ग था, एवरीबॉडी वाज लाइक डैम दिस इज कपल गोल्स एंड एवरीथिंग. They broke up, the guy broke up, he ended up with someone else, the girl was devastated, she gained weight, and it was all this stress and everything, guys. I know PCOS और ये सारी चीज़ें, it all comes down to this, it all comes down to stress. So her life is ruined, guys. I mean, nobody talks about this, but it's true. She was never this person anymore. We met while I was sitting in a local train, तो मतलब she came and sat beside me and we had a talk, and तब वो relationship में ही थी, and then later on she told me that this is what happened like 2 years down the line, and she's broken. She was just totally different person. like मैंने उसको लोकल ट्रेन में देखा था और फिर उसके बाद उसने पोस्ट वगैरह अपलोड करी, तब देखा she gained a lot of weight. I don't know what it was, but as far as I can assume, it was the stress. So relationships fuck you up, it is the truth, if it does not work out then. So that's what I'm telling you, like guys, choose wisely. but अब इसमें ऐसा है कि कई सारे लोग choose wisely भी करते हैं, but eventually even the other person is not wrong, but it just does not work out. आपने कितने सारे लोगों से सुना होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं था कि he or she was wrong, it just did not work out. But I don't know, 80% of the times I see that someone backs out, and as I said, they just trigger an anger emotion in you अपने behavior से ही, and when you react to it in a bad manner जो कि वो चाहते हैं, they get an opportunity to blame you, and you're blamed कि you're the evil one, you're the one, this is the reason I didn't want to be with you, and you're done. It is what it is. I just felt a little emotional right now, so I just thought I might share it with you guys, and I'm pretty sure everybody can relate to this. As I said, this happens to all of us.